Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss a game theory and interdependent decision making. Like we previously hinted in the previous lecture, that we're going to focus on how game theory can be instrumental in understanding the interdependent decision making process when it comes to states in the global political economy. Moving on, let's start from the basics. Uh, you all might have played games. What is a game? Game is when two actors are trying to maximize their interests. Everyone wants to win. Hence, having said that, there are certain games in which the outcome might come as if one actor is losing and the other is winning. Game theory is the branch of mathematics which was concerned with the analysis of strategies for dealing with competitive situations where the outcome of a participant's choice of action depends critically on the actions of better participants. Game theory has been applied to contexts in war, business, biology, and international relations. It was developed by Professor John von Neumann and Oscar Morgenstern in 1928. This theory deals with making decisions. This theory was applied to international relations by Thomas Schilling, uh, 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 to IR and political science both, to IR and international politics both in 1950s and 1960s by Thomas Schilling. The approach of game theory is to seek to determine a rival's most profitable counter strategy to one's own best moves. Having said that, uh, to understand game theory, it is very important to have an understanding of the realist school of thought, or the realist school of understanding different scenarios, which we have already discussed in previous classes. Uh, what one actor is gaining or losing in a specific situation is basically the essence of game theory. As we all know that every state wants to maximize its self-interest, so it analyzes its gain and loss. Every state wants to do a rigorous exercise of cost benefit analysis before taking a final decision in the international politics and an international situation or an international scenario where the state's economy is concerned. Having said that, the approach of game theory is to seek to determine a rival's most profitable counter strategy to one's own best moves. It helps in determining the best course of action from a firm view of the expected counter moves from the competitors. There are certain assumptions that are present in the game theory. It says that there are finite number of players, uh, and there is conflict of interest between them. Thirdly, each player has available with them finite course of action. मतलब limitless course of action. Sorry, limited course of action. Players know all possible available choices but does not know which one is going to be chosen by the other player. Players simultaneously select their respective course of action. The payoff is fixed and determined in advance. The players have to make individual decisions without direct communication. They are isolated from each other. They don't know what the other player is thinking or what the other actor is thinking, and they try to make a decision which best suits their own interest and which is also beneficial for their mutual benefit in the longer run. अच्छा जी, पे ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है, पे ऑफ का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि पे ऑफ का मतलब मेनली है कि इट्स द रिजल्ट ऑफ द गेम थेरी विच इज मेजर्ड एट द एंड. ठीक है, विच इज ऑलरेडी मेजर्ड एंड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर. पे ऑफ का मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. आपको पता है कि इफ आई गोइंग टू टेक डिसीजन ए, देन द आउटकम विल बी डिसीजन बी. ठीक है, मतलब अगर मैं एक डिसीजन लूंगा तो उसका आउटकम हमेशा अच्छा आएगा, या मैं अगर इस तरह का डिसीजन लूंगा तो इसका आउटकम हमेशा नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो पे ऑफ से मुराद इसकी ये है. क्लासिफिकेशन क्या है गेम थ्योरी की, ये समझना बहुत ज़रूरी. गेम थ्योरी की डिटेल के अंदर जाने से पहले गेम थ्योरी के अंदर assumptions ये है कि assumptions जब मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने डिस्कस किया कि जो प्लेयर्स हैं, two opponent players are present, or
यू कैन से दे कैन बी इंडिविजुअल्स। आईआर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो प्लेयर हैं, वो प्रेजेंट हैं। दे कैन बी टू और मोर देन टू स्टेट्स। फिर ये कि इंफॉर्मेशन उनके पास क्या है, लाइक वी ऑब्जर्व आर ओपोनेंट while playing a game. Likewise, states also observe the information they're getting from the other state. They get it through their foreign envoys, their own foreign embassies, and through their various diplomatic channels. फिर तीसरी चीज जो assumption में थी वो थी strategy की. That it's a skillful plan through which you can take an efficient decision. Example, for in cricket, you play a slow bowler differently than a fast bowler. Same goes for the state. States tend to take a different decision when it comes to war, when it comes to signing a treaty, when it comes to signing a cooperation treaty, economic cooperation करते हुए, किसी conflict के अंदर involve होते हुए, कोई अच्छे या बुरे ताल्लुकात जब states के होते हैं आपस में, तो they want to change their strategy according to the situation which they are going through. They make separate strategies for to respond to every separate situation. ठीक है जी. फिर एक इस गेम के अंदर जो है वो रूल्स होते हैं. रूल्स ऑफ द गेम एक्सप्लेन हाउ टू प्ले द गेम. आईआर के अंदर या पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर जो है देयर आर सम बेसिक रूल्स, जैसे कि आपके अंदर आईआर के अंदर फॉर एग्जांपल बेसिक रूल्स ये है कि आप जो है वो इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे. ह्यूमन राइट्स को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, उसकी पाबंदी करेंगे. ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को जो है वो इंश्योर करेंगे कि वो ना हो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. फिर पे ऑफ्स मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कौन जीता है कौन हारा है. एंड रिजल्ट जो है वो मेजर होता है कि एक कोई जो डिसीजन ले रहा है उसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या होगा. इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन you analyze or measure the rational behavior of the state, what is rational or logical, what is not rational or what is not logical. अब हम क्लासिफिकेशन के अंदर जो बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो है हम टाइप्स ऑफ गेम्स को पहले देखेंगे. सबसे पहले जो है वो कहा ही जाता है कि इट्स अ गेम ऑफ टू पर्सन्स, के दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, और एक्टर ए और एक्टर बी. दूसरी क्लासिफिकेशन ये हो सकती है कि एन पर्सन गेम. एन पर्सन गेम का मतलब होता है कि ज्यादा, दो से ज्यादा प्लेयर्स आर प्रेजेंट. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर है जी उसके अंदर सिचुएशन. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इनटू दिस गेम थ्योरी. पहली सिचुएशन जो है वो है जीरो सम गेम की. जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि इट्स अ गेम इन विच सम ऑफ amounts won by all winners is equal to the sum of amount lost by all losers. In layman's language, zero sum game is a game in which one player's gain is equal to the loss of the other player. एक ही जीतेगा और अगर एक जीत गया तो दूसरा डेफिनेटली हार रहा है. If one wins, the other loses completely. Political economy के अंदर भी, international politics के अंदर भी, there situation where if one person wins, the other person loses. एक state अगर जीत रही है तो दूसरी जो है वो lose ही कर रही है. उसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं कोल्ड वॉर की, जहाँ पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था. कश्मीर इशू के आप एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है जी. इसी तरह से जो है वो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो जीरो सम गेम की बात है कि ट्रेड या तो हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है जी. अच्छा जी. फिर ये है कि नॉन जीरो सम गेम क्या होती है. अ गेम इन विच द सम ऑफ गेन्स एंड लॉसेस इज नॉट इक्वल. ठीक है, कि आप उसको इक्वली मेजर नहीं कर सकते कि ये जो है वो कम्प्लीटली गेन हुआ या लॉस हुआ है. देयर इज समवेयर टाइप. फिर तीसरी चीज है प्योर स्ट्रेटजी गेम. अ गेम इन विच द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर ईच प्लेयर इज टू प्ले वन स्ट्रेटजी थ्रू आउट द गेम. क्योंकि स्ट्रेटजी चेंज ना हो, वो एक ही प्लान ऑफ एक्शन को जो है वो फॉलो करते हैं. फिर चौथी जो चीज़ आती है गेम थ्योरी के अंदर वो आती है मिक्स स्ट्रेटजी गेम, जिसके अंदर जो है अ गेम इन विच ईच प्लेयर एम्प्लॉयज डिफरेंट स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट टाइम्स इन द गेम. जैसे मैंने कहा था कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो रही होती है. जिस सिचुएशन में कोई भी स्टेट होती है उसके मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है. ठीक हो गया. अच्छा, एक और जो सिचुएशन है वो आती है जी वेरिएबल सम गेम की, जिसके अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं दोनों पार्टीज. इट इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ द जीरो सम गेम. we all see that in real life there are no zero sum games. आपको पता है कि zero sum गेम अल्टीमेट लॉस या अल्टीमेट गेन किसी का भी नहीं है.
देयर इज़ ऑलवेज दैट मिडल ग्राउंड, कोई ना कोई बीच की सिचुएशन ज़रूर प्रेजेंट होती है, चाहे वो आपके म्यूचुअल रिलेशंस हों, चाहे वो स्टेट रिलेशंस हों। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पोल्स अपार्ट नहीं है, डिसाइसिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली इन द ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट इन विच द स्टेट्स आर कोऑपरेटिंग नाउअडेज। उसके अंदर कोई भी चीज़ बिल्कुल जो है वो ज़ीरो सम गेम की तरह नहीं है कि कंप्लीट लॉस होगा या कंप्लीट गेन होगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर भी देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। तो जो वेरिएबल सम गेम की सिचुएशन है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि गेम जब आपकी स्टार्ट हुई है या वो कोई भी सिचुएशन स्टार्ट हुई है, उसके अंदर जो है आउटकम जो आपको नज़र आ रहा हो एक स्टेट को, वो ज़ीरो सम हो, आपको लगे कि यहाँ कंप्लीट लॉस होगा या कंप्लीट गेन होगा। बट जब तक आप गेम एंड नहीं करते, उस टाइम तक आपका जो आउटकम है दैट या गेम की जो सिचुएशन है, नेचर है, वो वेरिएबल सेम गेम के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, वॉर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि इनिशियली आपको लग रहा होता है कि एक स्टेट जीत जाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वॉर वो कम्प्लीटली ऑपोजिट हो जाता है, या दोनों जो है वो किसी एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाती हैं। वर्ल्ड वॉर टू की एग्जांपल दे सकते हैं, जिसके अंदर फ्रांस और जर्मनी ओपोनेंट्स थे, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया फॉर द पीस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो पे ऑफ डिफरेंट होते हैं। पे ऑफ डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, गेन और लॉस जो है उसकी मैट्रिक्स बिल्कुल चेंज होती है। फिर एक और सिचुएशन जो है वो है चिकन आउट गेम की। चिकन आउट गेम जो है इट्स लाइक जीरो सम गेम। कोई भी एक जीतता है और दूसरा हारता है, वन इज विनर एंड द अदर इज लूजर। इट्स लाइक अ कार रेस जिसके अंदर जो है वो एक जीत रहा है और दूसरा लूज कर रहा है। इफ वन स्लोज द कार एंड द अदर आल्सो स्लोज टू अवॉइड डिसग्रेस फॉर अवॉइडिंग इंसल्ट, बोथ पार्टनर्स अकोमोडेट ईच अदर। इसके अंदर जो है वो दोनों चिकन आउट करते हैं और अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे को। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैंने बात की थी पे ऑफ की। पे ऑफ इट्स द आउटकम ऑफ प्लेइंग अ गेम, कि क्या एंड रिजल्ट निकलेगा, नेट गेन होगा, नेट लॉस होगा, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो है क्या काउंटर स्ट्रेटजी आपका कंपिटिटर is likely to apply to the situation. Net gain is measured in terms of objective of the firm, that is increase in profits etc. Political economy की terms में अगर आप बात करें तो फिर है जी पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स इट्स अ टेबल जिसके अंदर सारा ये गेम थेरी की सारी सिचुएशंस और सारे सिनेरियोज लिखे हुए हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ। ये जो मैं आपको रीडिंग मटेरियल दूंगी उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। चिकन आउट गेम की हमने लास्टली बार डिस्कस की थी, उसके अंदर 4 तरह की सिचुएशंस मजीद दी जाती हैं चिकन आउट गेम के अंदर, जिसके अंदर दोनों प्लेयर जो हैं कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। पहली सिचुएशन के अंदर दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। कार रेसिंग की जब मैं बात कर रही थी, डिस्ग्रेस को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी सिचुएशन के अंदर दोनों जो है ड्राइवर्स गाड़ी को रोक देते हैं। तीसरी सिचुएशन के अंदर दोनों प्लेयर्स जो हैं वो कोऑपरेट ही नहीं करते, ड्यू टू द ईगोज एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और चौथी सिचुएशन जो है उसके अंदर एक कोऑपरेट करता है, एक्टर है और प्लेयर एक कोऑपरेट करता है, दूसरा कोऑपरेट नहीं करता। जो पांचवी सिचुएशन है उसके अंदर भी एक कोऑपरेट करता है, दूसरा कोऑपरेट नहीं करता। तो उस केस के अंदर जो है वो लूज या विन करने के चांसेस कम्प्लीटली किसी एक के हीरो और दूसरे के जीरो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। मूविंग ऑन, नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी क्या है? वे सिंपली कंसिडर सम आइडियल टाइप सिचुएशंस दैट रिवील हाउ एक्टर्स माइट टेक डिसीजन। इस सिचुएशन के अंदर हम गेम थ्योरी को डिस्कस इस सिनेरियो के अंदर हम गेम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। We are going to discuss कि non-cooperative game theory क्या होती है, which assumes that actors cannot enter into a contract of some time that binds the other actors to play in a particular way. कोई भी नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे प्लेयर को पहले से बाउंड नहीं कर सकते कि आप एक एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजी या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एक्शन। आप ये नहीं दूसरे स्टेट को या दूसरे एक्टर को बाउंड नहीं कर सकते कि जो है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से गेम खेली जाएगी। This approach helps set the stage of understanding the role that international situations might play in developing cooperation. We begin with one of the best known situations of the interdependence. Prisoner's dilemma को हम आगे डिस्कस करेंगे। Prisoner's dilemma को कहा यह जाता है कि it's the best case scenario for understanding the situations of interdependence. प्रिजनर्स डायलेमा क्या है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहा यह जाता है कि आपका जो प्रिजनर्स डायलेमा है
it is very significant in understanding the international political economy. प्रिजनर्स डायलेमा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स थिंक दैट द प्रॉब्लम ऑफ रेसिप्रोकल ट्रेड लिबरलाइजेशन can be discussed through understanding prisoners dilemma, the difficulties in monitoring partners' trade policies, and the potential political benefits to governments from open export markets and closed domestic markets often push states to back out of their commitments to reciprocate trade liberalization measures. तो ये प्रिजनर्स डायलेमा के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है स्टेट्स अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को चेंज करती हैं, कैसे जो है स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन अगली स्टेट का जो बेनिफिट है या अगली स्टेट का जो गेन है उसको बिल्कुल ओवरलुक कर देती हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं. अच्छा जी, before we move on to the discussion of what and how we'll understand prisoners dilemma, I want to discuss some criticism which comes on to the game theory. Game theory, as we all know, that it provides a comprehensive, in-depth exploration of actors' interaction. कि different actors के साथ interact कर रहे हैं. It assumes actors' basic preferences in their particular strategic environment कि वो जिस भी environment के अंदर है उनकी क्या preference है. और वो जो है and then helps us to drive how actors rank the various policy options at their disposal and allows us to determine the likelihood or the likely outcome of the interplay among a variety of policy choices. Game theory जो है it has become a standard tool for analysis of situation of interdependence in social sciences. Aside from its predictivity or predictive end result, game theory has a strong appeal for anyone engaged in explanation, investigation, and prescription. When it comes to game theory, the critics have traditionally emphasized the overstretching of the concept of rationality. कि आप खुद से समझ लेते हैं कि अगला जो प्लेयर है या आप जो है वो रैशनल हैं या लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं. दूसरी चीज़ जो है क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड रियल फिनोमेना. कि जो आपने सिचुएशन एक मैट्रिक्स बना के दे दी है गेम थ्योरी की, जो एब्स्ट्रैक्ट आपने स्ट्रेटजीज या थेरीज बता दी हैं कि जी ये गेम थ्योरी है, इट कैन नॉट be applied to the real environment or real phenomena as it is. Regarding the notion of rationality, most applications of game theory assume that players interacting under conditions of imperfect information possess a very high computational ability to make their decisions. Players must evaluate a host of possible worlds on the basis of the knowledge commonly shared with others or privately known. This kind of situation often implies that players engage in counterfactual reasoning about a large set of possible worlds. ज़रूरी नहीं है कि rationality या किसी एक चीज़ के बारे में concept जो है एक्टर्स का एक दूसरे से मिलता जुलता हो. Every actor has a logical mind, has a set of beliefs and set of understanding of the situation which might not appear to be logical to the other player, but हर कोई अपनी तरफ से लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा होता है. तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर गैप है. Although there clearly remain weaknesses in most game theoretic analysis of international relations, the link between theory and empirics का मतलब होता है theory और जो आपकी practicality has clearly improved over the last decade. Users of game theory have employed different techniques to check the validity of the models based on the comparison with reality. The dominant approach has been indirect testing through the statistical analysis using either large N data sets or a series of case studies. Another approach has been to use case studies to trace the behavioral attitude of actors and check it with specific predictions of the models. ठीक है जी, स्टेटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है. उसके अलावा जो है वो बिहेवियरल एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने लगी है. एक्टर्स के अंदर स्टेट्स को आइसोलेशन में अब नहीं देखते, एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली इंटरेक्ट कर रही हैं और सारी चीज़ जो है वो थ्योरेटिकली सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते. मूविंग ऑन टू प्रिजनर्स डायलेमा. प्रिजनर्स डायलेमा का डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमने प्रीवियसली गुड्स के ऊपर बात की थी, फिर कलेक्टिव एक्शन के ऊपर बात की थी
कि वो किस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल्स के लिए इन ऑर्डर टू, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू सी गेन्स, वो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं लेकिन अपना नुकसान नहीं करना चाहते, दे टेंड टू अवॉइड कॉस्ट. This problem of free riding or shrinking of one's obligations makes it difficult to produce desired goods. ठीक है जी, डिजायर्ड गुड्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि आप ये चाहें कि आप जो है वो किसी चीज़ के लिए पे भी नहीं कर रहे और आप ये चाहें कि आप फ़ायदा भी पूरा हासिल कर लें, ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है एंड इट बिकम्स अ बर्डन इंटरनेशनली. As the case of prisoner's dilemma we'll discuss, even though actors may be better off cooperating, the structure of the bargaining situation may prevent them from achieving the collective gains that they desire. The prisoner's dilemma is a story in which two individuals are involved in a robbery and then are caught near the scene of the crime. ठीक है, और उनका जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, it does not have sufficient evidence to convict either of the suspects. किसी एक को भी वो सस्पेक्ट नहीं कर सकता of the robbery unless कोई एक जो है वो जिसको आप आम फहम जुबान में कहते हैं वादा माफ गवाह बन जाए, unless at least one of them reveals additional information to them, but then he has some evidence to convict both of them of a lesser crime. ठीक है जी. अब जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, it wants more information to convict both suspects for a longer period. दोनों प्रिजनर्स को कहा जाता है कि सेपरेट इंटेरोगेशन रूम्स के अंदर, सेपरेट रूम्स के अंदर ले जाते हैं और उनसे बारी बारी क्वेश्चनिंग करते हैं. अब जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि कहा यह जाता है कि वन प्लेयर इज वेरी रैशनल, द डिसीजन टेकन बाय द रैशनल प्लेयर गोज इन फेवर द एनीवन. टू प्रिजनर्स आर अरेस्टेड but are kept into the separate room. अब इसके अंदर जो सिचुएशन ये है वो ये है कि इफ प्रिजनर एक कन्फेसेस, एक जो है मान लेता है, इट इज़ प्रोमिस दैट इट विल बी फ्री. कहा जाता है कि अगर आप कन्फेस कर लें, गवाह जो है गवाही दे दें और मान लें कि आपने जो है रॉबरी की है और सच बता दें, तो उसमें जो है वो आपको कम सेंटेंस मिलेगी. दूसरी सिचुएशन वो है जिसके अंदर दोनों कन्फेस कर लेते हैं, दोनों मान जाते हैं कि रॉबरी, उसका मतलब है कि दोनों को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सजा मिलेगी. तीसरी सिचुएशन वो है जिसके अंदर जो है दोनों चुप रहते हैं और दोनों का जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या पुलिस पर्सन जो है, सॉरी पुलिस मैन जो है वो दोनों का कुछ नहीं कर सकता बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं. ठीक है जी. अच्छा जी. और उसमें जो है ये भी हो सकता है कि ए जो है वो कन्फेस ना करे लेकिन दूसरा एक कन्फेस ना करे लेकिन प्रिजनर बी कन्फेस कर ले. ये भी हो सकता है कि प्रिजनर बी कन्फेस कर ले और ए कन्फेस ना करे. If both do not confess, then both will have a short imprisonment due to the lack of evidence, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया. और अगर दोनों जो है वो कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों की imprisonment या दोनों का जो सेंटेंस है वो लंबा हो सकता है. ये जो सिचुएशन है इसको आप बहुत सारे सिनेरियोज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो एक लॉजिकल स्ट्रेटजी बना सकते हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से है. अगर आप स्टेट्स के केस के अंदर बात करते हैं तो उसके एक इंटरडिपेंडेंट इन्वायरमेंट के अंदर या जहाँ पे जो है वो स्टेट्स आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे भी कंसिडर दो स्टेट्स टू बी प्रेजेंट इनटू एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, जहाँ पे स्टेट ए ने ऐसा डिसीजन लेना है जिससे वो मैक्सिमम खुद गेन करे और अपना जो नुकसान है वो कम से कम करे, कीपिंग इन माइंड द पोजीशन ऑफ द अदर स्टेट इज वेल. ठीक है जी. प्रिजनर्स डायलेमा वाली सिचुएशन है उसकी एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर there has been examining in the collective management of resources, whereas countries producing particular commodities traded on world markets would prefer a situation where they all manage production so as to keep prices sufficiently high. जैसे ओपेक की आप बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वहाँ पे जो है हर कोई चाहता है कि प्राइस उनके लिए हाई रहे. Individual countries face the temptation to cheat by increasing extraction or the production of those commodities so as to maximize their individual income. मतलब ये कि ओपेक से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर कोई ये चाहेगी कि वो जो है वो अपना फ़ायदा सबसे ज़्यादा पहले देखेगी और ये देखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सट्रैक्शन करें जहाँ से उनको ऑयल मिले और उन कमोडिटीज़ का जो प्रोडक्शन हो रही है एज द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन उसको जो है वो मार्केट के अंदर लेके जाए और अपना इंडिविजुअल स्टेट अपना इंडिविजुअल बेनिफिट जो है उसको इंक्रीज करे, अपनी इनकम को इंक्रीज करे. एज अ रिजल्ट एक्टिंग collectively to keep commodity prices stable for commodities such as coffee, tin and even oil has been a very
हर्क्यूलियन या हैवी टास्क पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है जी। तो जहाँ पे कॉपरेशन वाला एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे प्रिंसेस डायलेमा की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि हर स्टेट जो है वो फ्री राइड करना चाहती है, हर स्टेट ये चाहती है कि उसका जो गेन है वो मैक्सिमम हो और उसका जो इन्वेस्टमेंट है या उसका जो लॉस है या जो पेमेंट उसको करनी पड़ती है वो मिनिमम हो। ठीक है, जैसे मैंने ओपेक की एग्जांपल दी, वहाँ पे स्टेट हर कोई ये चाहेगा कि वो मैक्सिमम इनकम रिसीव करे फ्रॉम दिस, क्या कहना चाहिए, एक इंटरडिपेंडेंट एनवायरनमेंट या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो कि उस फोरम ने उनको प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसके अंदर जो है वो ट्रेड लिबरलाइजेशन के ऊपर प्रिंसेस डायलेमा को बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो मैं रीडिंग दूंगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी हुई है। कहा यह भी जाता है कि प्रिंसेस डायलेमा जो है वो कोई एडिकेट डिपिक्शन नहीं देता ट्रेड सिचुएशंस की। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है इट इज़ रिलेटेड टू सिनेरियो बिल्डिंग। स्टेट्स माइट टेक दैट ऑप्शन एंड स्टेट्स माइट नॉट आल्सो टेक दैट, डिफरेंट सिनेरियोज जो कि हमने डिस्कस किए। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि अगर दोनों इंडिविजुअल्स जो है वो कन्फेस कर लेते हैं, दोनों अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, खुद कन्फेस कर लेते हैं, मतलब दोनों प्लेयर ए बी बोथ कन्फेस, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कि इट कम्स आउट, इट ends into Nash equilibrium outcome, which is the lower right, which is an outcome in which neither of the players can improve his or her situation by chasing his or her individual strategy। कि दोनों अकेले अकेले जो है अपनी स्ट्रेटजी को अगर चेज करेंगे या उसके लिए काम करेंगे तो वो दोनों जो है दिल एंड अप लूजिंग इट। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर भी जो है, जैसे मैंने ओपेक की एग्जांपल दी थी, कि अगर हर स्टेट वॉचेज आउट फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट और इट्स ओन इनकम गेन, तो उससे जो है एंड रिजल्ट ऐसे आएगा कि लूज लूज सिनेरियो हो जाएगा सारी स्टेट्स के लिए। और वो जो फोरम जो कॉपरेशन के लिए या इंटरनेशनल cooperation and based on, sorry, aimed at gaining mutual benefit out of a particular forum, वो जो है वो null and void हो जाएगा। जो Nash equilibrium है, it is an outcome in which none of the players can improve his or her situation by changing their individual strategy, but if both switch to the strategy one, जहाँ पे दोनों चुप रहे थे, दोनों जो है players can secure a better outcome। However, this collectively optimal situation is unstable because each actor can improve his or her own welfare by individually switching strategy to uh, to the level जहाँ पे उनका अपना एक इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा हो। Furthermore, game scenarios जो कि international cooperation से related है in our upcoming lectures. Thank you very much. If you have got any questions, please feel free to ask.